A very good evening to each one of you present here. I am Akshi and I am your host for the day along with Eva. Today is an essential day of the year for our country because it marks the completion of 75 years of independence. That is the platinum jubilee of protecting our Sone ki Chidiya, which our nation was referred to because of all the abundance of treasure and heritage. It is only because of our freedom fighters and Jawans that were breathing in an independent nation. But the fight still goes on along the borders where many are fighting and putting their lives on the line for us civilians. Hi, I'm Eva, and we are here with the third episode of our Samvad series, on which we'll talk to our guest about their life experiences being a family member of an army personnel who's fighting their life on the front lines. So today for the third episode, we have with us Shivangi, whose grandfather was a flying lieutenant from the Indian Air Force. He was a kind, honest, and a very hardworking man, and he served our nation for 36 years. We also have with us Gaurav, whose father was a deputy commandant in BSF. He has served more than 35 years in Border Security Force and was awarded Police Medal for Gallantry in 2015. It is a pleasure to have you both with us, and I welcome you on this special occasion. Hi, Gaurav. Can you give a brief introduction of yourself? Yeah, hello everyone. My name is Gaurav Karira. So today I'll be sharing my life experience of being an army brat, and I want to thank the whole team of NSS NCU for initiating this program, and yeah, I'm looking forward to it. Thank you, Gaurav. So, hi, Shivangi. Can you give us a brief introduction of yourself? Hello everyone, my name is Shivangi Sharma and I'll be sharing things from my father's perspective. And unfortunately, this year we lost our grandfather to COVID. Thank you, Shivangi, for this lovely introduction. तो चलो यार अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बचपन से. So did you like move around a lot or did you have a permanent place? So let's start with you, Gaurav. Did you have a permanent place or did you move around a lot? I was born in Punjab, Jalandhar. So पापा की ज़्यादा सर्विस पंजाब में रही है एंड मेरा मोस्ट चाइल्डहुड पीरियड पंजाब में बीता है. तो मेरे को ज़्यादा प्लेसेस चेंज करने को नहीं मिली. लाइक टिल 12 years old मैं पंजाब में ही था और उसके बाद मैं अभी गुड़गांव में आया हूँ. तो मेरा सिर्फ इन दो सिटीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है. हाँ, बीच में फॉर 3 months आई हैव टू शिफ्ट टू द जम्मू कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा जो चाइल्डहुड का है वो पंजाब में और यहाँ पे गुड़गांव में हुआ है. Okay, thank you. And what about your father, Shivangi? Did he travel a lot with your grandfather? Yeah, since everyone in the armed forces has to go through this in a few months, I think it gets easier with time and it was difficult to adapt in the initial stages, but it got easier with time for him. Okay, that's great. Okay, so let's start with a little of memories. You both can tell us one happy memory and one sad memory that you experienced in all these years, or maybe your family members had faced. We'll start with Gaurav. बहुत सारी हैं यार, बट द मोस्ट चेरिश्ड इज मैं सुचेतगढ़, एक बॉर्डर है जम्मू के एरिया में. ठीक है, तो हर जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे बॉर्डर्स पे स्वीट एक्सचेंज होती हैं. लाइक पाकिस्तान वाले हमें देते हैं यार, हम उन्हें कुछ देते हैं. दिवाली, ईद, होली, ऑल बड़े बड़े इवेंट्स पर. तो मेरे को एक बार मौका मिला था, आई डोंट नो इवेंट क्या था, बट मैं अपने डैड के साथ गया क्योंकि हम बॉर्डर के पास ही रहते थे और पापा की वहाँ पे ड्यूटी थी. तो वहाँ पे मेरे को एक ज़ीरो लाइन, अगर कोई वाघा बॉर्डर आप कभी गए हो तो वहाँ पे एक ज़ीरो लाइन होती है जहाँ पे गेट्स होते हैं, वाइट कलर की एक लाइन होती है. ठीक है, दैट डिफाइंस द बॉर्डर कि यहाँ पे पाकिस्तान है और ये इंडिया है. तो जब स्वीट एक्सचेंज करते हैं तो तुम मतलब ऐसे अगर तुम किसी को गिफ्ट दे रहे हो या जो भी होता है तो यू स्टेप अहेड दैट लाइन. ठीक है, तो मेरे को चांस मिला कि मैं पापा के साथ गया एंड आई मेट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स देयर. और फिर मेरे को मतलब ऐसा मन कर रहा था कि स्टेप आउट करूं इसे कि ना करूं. तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये है वो है. तो काफ़ी मतलब एक लकी एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ.
तो वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ओके शिवांगी, अब आप बताओ अपना कोई हैप्पी मेमोरी आपके फादर की या फैमिली की। हैप्पी आई थिंक सभी मैक्सिमम जो मेरे फादर की लाइफ रही है, ही वाज इन असम एंड ही वाज इन चंडीगढ़। तो he has been with my grandfather on a few trips, I'll say. But I think there was a time when he went to live with him, and the officers, they treat you like their own. मतलब बिल्कुल अपने बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं. So he was very happy with it. ओके ओके। और कोई ऐसी सैड मेमोरी जो आपके साथ रह गई और बॉदर करी कभी। तो एक इंसिडेंट दादू ने बताया था हमें। एक बार एक प्लेन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्लेन था, वो लेह से चंडीगढ़ में लैंड होना था, एंड लैंड होते टाइम उसका हाइड्रोलिक सिस्टम इट स्टॉप वर्किंग और रियर व्हील्स उसके नहीं खुले। तो प्लेन को बहुत स्लोली लैंड करवाना पड़ा वहां पर, और द क्रू इंक्लूडिंग माय ग्रैंडफादर, दे हैड टू जंप ऑफ द प्लेन, एंड थैंकफुली नो वन गॉट सीरियसली इंजर्ड। सब ठीक से हो गया था। और गौरव, कोई आपकी ऐसी सैड मेमोरी। ट्रांसफर्स कहूँगा मैं, क्योंकि जिस प्लेस में तुम बॉर्न होते हो, ठीक है, तुम पूरा अपना चाइल्डहुड बिताते हो और फ्रेंड्स बनाते हो, एक मतलब यू गेट वेरी अटैच टू इट, राइट। तो ट्रांसफ़र जब मेरा हुआ था फ्रॉम पंजाब, जो मैं जम्मू गया था 3 महीने के लिए, सो दैट पीरियड इज़ लाइक हेल फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम 5th क्लास में था, ठीक है, और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मैं बहुत अटैच था अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को ये था कि अब मैं इनसे बात कैसे करूँगा या आगे जाके इनसे मिलूँगा कैसे, ठीक है। तो मैं बहुत रोता था, मैं स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, ऐसे बहाने मारता था कि मैं बीमार हूँ, और लाइक डिप्रेशन विप्रेशन तो अब जाके पता चला है कि ठीक है, अच्छा ये चीज़ डिप्रेशन होती है, ये चीज़ एनजाइटी होती है। तो उस टाइम तो बस बहुत मतलब इट वाज लाइक जस्ट आई सेड, इट वाज लाइक हेल फॉर मी। तो वो मेरा काफ़ी एक बुरा पीरियड था जो मैं है मेरे साथ कि यस, इट वाज माय वन ऑफ द वर्स्ट। Thank you, Gaurav, for sharing that moment with us. So the next question we'd like to go forward is, how did your families cope up with your family members being placed or being posted at a crucial or a sensitive posting, Like, how did you handle your emotions of anxiety and curiosity? So, can you tell us about that? Gaurav? We start with Shivangi this time. Okay. So, Yeah, so during the 1971 war, uh, there was tension, and my grandfather was taken from Agra to an undisclosed location, and the whole family, there was anxiousness, there was tension, they were scared basically because of the times, जैसा उस टाइम माहौल था, और आई मीन नेचुरली एक फैमिली मेंबर जो आपका डिफेंस में है, एंड देन वो ऑल ऑफ अ सडन दे टेक हिम। तो हाँ, एक वो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था फॉर माय फादर। Okay. Gaurav, can you tell us? ये अराउंड 1999 के बात होगी। तो माय फादर वाज पोस्टेड एट वेरी सेंसिटिव लोकेशन इन श्रीनगर, आई गेस, या फिर कश्मीर। काफ़ी सीरियस पोस्टिंग थी उनकी, जिस जगह पे पोस्टिंग हुई थी। तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। लाइक मैं 2001 में बॉर्न हुआ, तो जब मैं बॉर्न हुआ तो तब उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। तो मेरी मॉम ने बताया था कि वी यूज्ड टू राइट लेटर्स, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था, एंड हफ्ते में अगर फ़ोन भी एक बार आ जाता है, वो किस्मत पे है तुम्हारी अगर एक बार फ़ोन मिल जाएगा। बट एट दैट टाइम दे यूज्ड टू राइट लेटर्स, और फिर वो 15 दिन बाद वहाँ से एक लेटर आता था, और फिर मेरी मॉम ने मेरी जो फर्स्ट फ़ोटोग्राफ थी वो लेटर में भेजी थी पापा को। सो दिस इज़ हाउ दे डील विद
such situations. It is a very cute and very terrifying also. But anyway, Yeah. we'll move on to the next question that I have for Shivangi. Shivangi, did your father feel that he was free to do anything, knowing the fact that no one was around to keep a check on him? Like parents So, are away, और yeah. कैसे deal करते थे पापा? So, since he is the eldest son, उनको पता था उनके shoulders पे काफी responsibility है, mother की, then छोटे भाई की. तो instead of roaming around or wasting his time, he used to take responsibility first. Then he has those qualities from my grandfather of being disciplined, which is, it comes naturally when a person from your family is in defense. So that was it. He didn't he didn't roam around, or he was not an undisciplined child. Okay, that is so great. Okay, so I have a similar question for Gaurav, that how different was it for you, like, and your personal life when your parents were not around, like your father was away for a long time. Did you ever take leverage or liberty of doing things you'd never do when you are around them? Well, I was the youngest, so I had a privilege to do mistakes, but ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब तुम एक environment में रहते हो ना, बहुत disciplined environment में रहते हो ना, तो तुम ज़्यादा गलत हरकतें या जो भी गलत चीज़ों की तरफ इंक्लाइन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे दोस्त वैसे ही होंगे, ठीक है? अगर तुम कोई गलती करोगे तो वो तुम्हें मना करेंगे या दे विल गाइड यू, ठीक है? मेरे साथ जो था, हमारे टाइम पे कोई गाली निकाल देता था तो दे आर लाइक, हाँ, इससे बात ही नहीं करनी अब, ठीक है? तो तुम अगर गलती कर रहे हो तो तुम अपना एक पूरा सर्कल छोड़ रहे हो, ठीक है? और सर्कल अगर मैं बताऊँ, जैसे माय डैड वाज ऑफिसर, तो ऑफिसर किड्स लाइक उनका बहुत सिस्टम काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, राइट? नॉट ओनली ऑफिसर्स, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है? तो तुम तुम हमेशा सही रास्ते पे ही रहोगे, लाइक दे विल गाइड यू, बिकॉज एक बैकग्राउंड ही बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? उनका लाइक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, तो तुम गलतियाँ इतनी नहीं कर पाते, ठीक है? और तुम एक मतलब सही इंसान, सही रहते हो, लाइक यू लिव इन अ डिसिप्लिन्ड सर्कल. सो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मतलब एक ऐसे थॉट भी नहीं आता था कि चलो ये कर लेते हैं. हाँ, छोटी मोटी तो सभी करते हैं, मस्ती वस्ती तो ना, तो ठीक है. ग्रेट. चलो, ये तो बढ़िया काम, आप सबने फायदा नहीं उठाया इसका. तो अब ये बताओ दोस्तों के बारे में क्या, कि अभी भी टच में हो, इतना मूव करते थे, उसके बाद दोस्तों का साथ छूट जाता है. शिवांगी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जानते हैं आपके पापा अभी भी उन लोगों के साथ टच में हैं जिनके साथ पहले दोस्ती थी पर फिर मूव हो गए, नए दोस्त बन गए? आप बताइए. आई थिंक डेफिनेटली कुछ लोग मिल जाते हैं और देन कुछ नहीं मिलते हैं. तो कुछ लोगों के साथ है पापा टच में ओवर द टाइम. मतलब उस टाइम पे वी डिडंट हैव सोशल मीडिया, तो इतना नहीं हो पाया, बट अब ही इज इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स. चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो अब गौरव, आपसे पूछूंगी, क्या आप अभी कुछ ऐसे दोस्त हैं जम्मू कश्मीर के जिनके साथ, या फिर कहीं और के जिनके आप टच में हैं? अभी रिसेंटली ही एक सिनेरियो हुआ है. मेरे बचपन के जो तुम्हारे स्टार्टिंग में जो दोस्त बनते हैं ना, जिनके साथ तुम घर खेलते हो, या जो मतलब बिल्कुल चाइल्डहुड, लाइक जब तुम 3-4 साल के होते हो, छोटे छोटे बेबीज होते हो, तो उस टाइम के मेरे दोस्त थे. एक ओशो था, एक मिट्ठू है, ठीक है? तो मेरे को उनके ये नाम पता था, ठीक है? उनके रियल नेम भी नहीं जानते. तुम जो गली में बुलाते हैं, जो आसपास के लोग बुलाते हैं, तुम वही बुलाते हो. तो मिट्ठू का टेक्स्ट आया मेरे पास, थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन. उसका असली नाम सुमेधा था, जो कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था. तो उसका एक मैसेज आया मेरे पास कि हेलो विशु, लाइक माय निकनेम इज विशु. और ये बहुत कम लोगों को पता है, अब तो खैर सबको ही पता चल जाएगा इस पॉडकास्ट की वजह से. तो उसने लिखा हेलो विशु. तो मेरे को लगा कि यार ये कौन है, इसका एक लड़की का टेक्स्ट आया, ये क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? और वो विशु भी बुला रही है, मतलब ये कोई क्लोज वन ही है कि भाई इसको नाम भी पता है. तो मैंने उससे बोला कि यस, मैं तुम्हें, कौन हो तुम? तो उसने बोला कि हम जलंधर में एक साथ थे. फिर मेरे को लगा कि हाँ यार, जलंधर में सिर्फ 2 ही दोस्त थे. तो मैंने बोला तुम मिट्ठू हो क्या? उसने बोला हाँ. तो मैं उससे 11 साल बाद, लाइक 11 ईयर्स उससे बात हुई, और मेरे को कोई मतलब कोई होप भी नहीं थी.
मैं बस मेरे ऐसे थॉट्स में थी कि हाँ भाई एक दोस्त थे मेरे, 2 दोस्त थे, ठीक है? और 11 साल बाद उसका टेक्स्ट आया और फिर हमने बात करी, तो उसके टच में कुछ 1-2 लोग थे, मेरे टच में कुछ 1-2 लोग थे पुराने दोस्त। तो अब हमारा पिछले मंथ सबका सर्कल बन गया, जो पुराने जितने भी दोस्त थे हमारे, वो सब मिल गए फिर से। और अब हम रोज़ कोई अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेज रहा है, 2 साल वाली बर्थडे पार्टी की कोई वीडियो क्लिप भेज रहा है कि तू ऐसा दिखता था, तू चेंज हो गया। तो हाँ, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी टच में नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। आई होप इस पॉडकास्ट की वजह से वो रीच आउट करें, ठीक है? तो ये था एक्सपीरियंस। ये तो अच्छी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। बहुत। चलो ठीक है, इसी बात पे अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि कभी तुम्हें ऐसा लगा दैट यू वर द सेकंड प्रायोरिटी, या फिर तुम कंट्री के बाद आ रहे हो कि पेरेंट्स तुम्हें पूरा टाइम नहीं दिया या पूरी अटेंशन नहीं दी, कभी ऐसा लगा, या फिर कभी ये फैक्ट बॉदर किया कि शायद मैं बाद में आता हूँ, पहले कंट्री है, और तुम्हारा इस वजह से थॉट प्रोसेस कभी बदला? शिवांगी? या So, my father was brought up in a family where the head of the family was in the Indian Army, Indian Air Force. So, बहुत पहले से ही उनके अंदर ये चीजें इनकलकेट करी गई थी अबाउट द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड तो उनके अंदर आज भी ही कीप्स हिज कंट्री फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। तो उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ, एक क्योंकि बचपन से ही वो एक नोशन रहा है उनके अंदर उस चीज का। व्हाट अबाउट यू गौरव, तुझे कभी लगा ऐसा? देखो जी, ये होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इस पे तुम सवाल ही नहीं उठा सकते। अगर तुम एक ऐसे बैकग्राउंड पे आते हो, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं कि वाई मैं नीचे क्यों हूँ, या ऐसा कुछ सिनेरियो भी नहीं हुआ। बट कभी कभी जैसे ऐसे होता था कि काम होता था जैसे पापा को, ठीक है? तो काम के टाइम पे अब भाई ही इज सर्विंग इन BSF, ठीक है? उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, काफ़ी सारी। तो मेरे को अभी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। और पेरेंट्स का भी होता है काफ़ी कि वो हर चीज़ एक मैनेज करके चलते हैं, उन्हें पता होता है कि फैमिली को टाइम देना है तो पूरा फैमिली का होता है, और जब काम के टाइम पे काम होता है, तो प्रायोरिटीज़ होती है सबकी लाइफ में। और ये शायद मेरे हिसाब से तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। चलो यार, काफी समझदार निकले तुम तो अब ये बताओ कि है ना, कभी आर्मी ज्वाइन करने की सोची थी क्या? मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि सोसाइटी तुमसे ज्यादा चाहती है क्योंकि तुम एक डिसिप्लिन बच्चे हो? कभी ऐसा लगा दैट सोसाइटी एंड फैमिली इज प्रेशरिंग यू टू जॉइन द आर्मी टू कैरी ऑन द लेगेसी? तो शिवांगी, तुम लोग बताओ कि कभी तुम्हारे डैड को भी ऐसा फील हुआ क्या? एक्चुअली मेरे फादर को मतलब ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक और उनको ज्वाइन करना था, बट ही हैज अ मेडिकल कंडीशन, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। बट क्योंकि दादू को मेरे भाई ने, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, तो उसने देखा है हमेशा, तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड होपफुली ही गेट्स इन। वेरी नाइस। तो व्हाट And what अबाउट about यू? you? मेरे एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें कम से कम 7-8 लोग हैं जो फोर्सेस में हैं, या फिर वो पुलिस पुलिस फोर्सेस में हैं। तो मेरे को ये था कि यार ये तो सारा ही एक ऑक्यूपेशन ही हो गया, मतलब काफ़ी लिमिटेड स्कोप है इसमें, तो कि सभी यही है। बट जैसे अभी ईवा ने बोला कि सोसाइटी क्या तुमसे ऐसे डिमांड करती है या तुमसे कहती है, तो हाँ, जैसे मैं गाँव वाँव जाता हूँ तो वो मेरे से पूछते कि भाई क्या डिग्री कर रहा है तू? मैं उन्हें बोलता कि भाई BA ऑनर्स कर रहा हूँ मैं। कह रहा है यार ये क्या है, ये BA ऑनर्स क्या है? तो पुलिस में जा, तू अपने NDA क्लियर कर, ये क्या है, तेरे फादर ये थे वो थे। तो वो चीज़ तो रहती है, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे कभी ऐसे इन्फ्लुएंस मेरे पे कभी क्रिएट फैमिली से भी, जो मेरे मतलब मॉम डैड हैं, उन्होंने भी कभी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करा कि यही है बस ज़िंदगी में। मेरे को बहुत फ्रीडम दी थी, ठीक है? आफ्टर 12th की, ठीक है, अब तेरे को जो करना है तू कर, जो भी करना है अच्छे से कर बस। तो मेरे हाँ, ऐसे ऑप्शंस में मैंने भी सोचा था कि हाँ ठीक है, कभी फोर्सेस देख लेंगे, मतलब कर लेंगे ट्राई, जो कि मतलब है अच्छी चीज़, लेकिन मेरे अलग प्लान्स थे, तो मैं कभी इतना इंक्लाइन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही
सराउंडिंग ही मेरी पूरी ऐसे फोर्सेस वाली है, तो मेरे को थोड़ी बोरियत हो गई, ये कह सकते हैं। एक तो काफी तुम्हारी insight भी है। बड़ा पूरी फैमिली ज्वाइन कर रखी है, हर चीज इंडिया के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसका काफी बड़ा थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ गौरव से है कि हाउ योर मतलब डिड यू एवर फील कि तुम्हारा कल्चर नॉर्मल किड्स से थोड़ा डिफरेंट था, या फिर तुम्हारे अराउंड जो इन्वायरमेंट था, डिड इट एवर मेक यू फील दैट यू शुड हैव हैड अ नॉर्मल फैमिली? तो शायद जो फैमिली टाइम होता है या जो लव होता है, टुगेदरनेस होती है, वो शायद ज्यादा होती कि अगर आर्मी फैमिली ना होती तो हाउ वाज इट डिफरेंट? हाउ वाज द कल्चर डिफरेंट? कल्चर की मतलब मेरे को तो बहुत प्राउड फीलिंग आती थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तो सब अपनी वैन्स में आते थे, या कोई अपने रिक्शा में आता था, या कोई हमारे मेरे की छोटी काफ़ी पुरानी मेमोरी, तो ऑटोज वॉटोज भी आते, अभी भी होते हैं ऑटोज, तो हमारी आती थी बस, और वो भी मिलिट्री की, ये आती थी जिप्सी। तो उसमें से हम निकलते थे तो सब ऐसे कहते थे, अरे ये पुलिस में है क्या, ये पुलिस में है क्या। तो वो ऐसा लगता था कि हाँ भाई कुछ बढ़िया ही है हम, मतलब कम तो नहीं है किसी से। और कल्चर की ऐसा कुछ है नहीं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे लोगों के बीच में होती है। और फोर्स की सबसे अच्छी ये बात है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाई कल्चर्स हैं, ठीक है। और जब आप एक कैंपस में होते हो जहाँ पे तुम रहते हो, वहाँ पे अलग अलग, कोई साउथ, मेरे दोस्त साउथ इंडियन भी हैं, मेरे दोस्त कश्मीरी भी हैं, मेरे दोस्त म्यांमार के भी, मणिपुर के भी थे। तो तुम्हें मतलब काफ़ी अच्छा रहता है वो इन्वायरमेंट, कि ऐसे नए नए लोग मिलते हैं, ठीक है, उनके घर पे जाते हो तो वैल्यूज़ का पता चलता है तुम्हें। और मतलब काफ़ी सही इन्वायरमेंट रहता है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर वो चीज़ें नहीं मिलती। क्योंकि अगर मैं किसी गुड़गांव की कॉलोनी में रहूँगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि चलो गुड़गांव तो फिर भी स्मार्ट सिटी है काफ़ी, बट ऐसे कि अगर बाहर रहते तो इतना डाइवर्सिफाई तुम्हें लोग नहीं मिलेंगे, आसपास एरिया के लोग मिलेंगे। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली में बॉर्न हुआ, और दैट्स इट। काफी स्टेट के साथ नेटवर्किंग करी है मतलब। चलो अब ये बताओ कि कोई एक स्ट्रेंथ या कोई एक ट्रेट जो तुम्हारे है ना फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है, आर्मी बैकग्राउंड की वजह से, जो अगर नॉन आर्मी बैकग्राउंड होता वो होता, चाहे शिवांगी तुम में ही आया हो, तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से, या फिर तुम्हारे फादर में आया हो, ऐसा कुछ। आई थिंक पहले मतलब जब हम लोग स्कूल जाते थे तो तब से अब तक मेरे दादू ने एक चीज सिखाई है कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। तो सुबह उठाते थे वो मुझे, मेरे भाई को, देन वो बस स्टॉप तक छोड़ के आते थे, देन उसके बाद स्कूल से आने के बाद ही यूज टू टीच अस, मैथ्स पढ़ाते थे वो मुझे स्पेसिफिकली। और आई थिंक एक डिसिप्लिन जो उनके अंदर था वो बहुत अच्छे से आ जाता है अगर आई मीन यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो मेरे फादर में भी वो चीज है, हम में भी वो चीज है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिफेंस, आई मीन बिकॉज ऑफ हिज जॉब। थैंक यू शिवांगी, काफी प्यारे मोमेंट्स बताए तुमने जो अपने दादाजी के साथ बताए, और काफी अच्छा लगा ये सुन के। और गौरव तुम बताओ कोई स्ट्रेंथ या कोई ट्रेट। आई विल से करेज। करेज एक बहुत मतलब जो मेरे को लगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, जो कि मेरे को इधर से ही मिला। करेज टू मूव ऑन, करेज टू एक्सेप्ट थिंग्स जैसे भी हैं तुम्हारे सामने, और अडेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, कि नए लोग, नई जगह, हर 3 से 4 साल बाद तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है, तुम एक नई जगह पे जाते हो, नए लोग मिलते हैं, हाउ यू अडेप्ट थिंग्स। और करेज अपने पुराना टाइम भुलाना जो भी बुरा था, और एक मूव ऑन करने की, लेट्स गो यार अभी ज़िंदगी बाकी है भाई। बहुत मुश्किल होता है ये ट्रेट इनहेरिट करना, कि लेट गो कर देना या फिर करेज हाँ दिखाना मतलब किसी। बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तुम्हें उसके साथ ही बियर करना पड़ता है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में होती है दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत नेचुरल होती रहती है। आई अंडरस्टैंड। तो फिर ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो दैट
your family faced, yeah, you faced that might have shocked you or maybe affected you or your family members? कोई ऐसा deep incident? We'll start with Shivangi. तो जो मैंने 1971 की वॉर बताई, उसके बाद दादू को वायु सेना मेडल मिलना था, एंड ही हैड अ सीनियर ऑफिसर जिन्होंने मतलब कुछ अगेंस्ट बोला उनके, जिसकी वजह से वो उनको नहीं मिला, एंड अगर वो मिलता तो ही वुड हैव गॉटन अ प्रमोशन, or maybe he would have got a piece of land or something like that. तो उसके बाद में भी he met the senior officer, काफी सालों बाद वो लोग मिले यहीं गुड़गांव में, and तब the senior officer he was sorry, he said I'm sorry, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, and I mean my grandfather, I don't know what kind of person he was, he said it's okay, it is life and you need to move on. So that was it. I think that could have impacted his life. Like, earning a medal is everything. पूरा लाइफ लोग उसके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट Definitely. इतना सेल्फलेस बिहेवियर होना, हैट्स ऑफ. गौरव, यू टेल अस समथिंग. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही था कि मैं काफ़ी लेट बॉर्न हुआ हूँ, मेरी 3 सिस्टर हैं, उसके उनके बाद मैं बॉर्न हुआ हूँ। तो गाँव में ये होता है, कुआँ पूजन होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हरियाणा वाली साइड में, तो कुआँ पूजन ही बोलते हैं, बाकी पता नहीं मेरे को। तो उसमें मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और मैं काफ़ी टाइम बाद हुआ था, तो सब बहुत खुश थे। उस टाइम पापा वाज इन श्रीनगर, तो पापा को छुट्टी नहीं मिली। मतलब पापा ने बोला अपने सीईओ को कि भाई मेरा लड़का हुआ है और मेरे को मतलब कि 1 हफ्ते की या 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो एंड आई विल बी बैक, एक बार फंक्शन पूरा हो जाए। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ये है वो है। और जैसे अभी शिवांगी ने बताया कि पॉलिटिक्स भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईजी होता है, कि भाई ड्यूटी ही हार्ड नहीं होती, अंदर की चीज़ें भी बहुत सारी डिफ़िकल्ट होती हैं, जेलसी होती है, पॉलिटिक्स होती है अपने में ही। तो उस पॉलिटिक्स, उस जेलसी की वजह से पापा नहीं आ पाए, तो वो फंक्शन भी नहीं हो पाया इतने अच्छे से, जितने अच्छे से होना चाहिए था। तो एक वो काफ़ी पापा को रिग्रेट रहता है कि मैं नहीं आ पाया, जब मतलब जो भी वो फंक्शन था। सो वो काफ़ी मेरी फैमिली को चुभता है वो इवेंट काफ़ी। स्पेशल ओकेजन्स पे फैमिली पूरी ना हो तो वो ऑफ कोर्स चुभेगा ही. एग्जैक्टली. ओके, लेट्स मूव ऑन. Yeah. So tell me about the unique view your life gave you of India and its patriotism. Like you have seen inside, you have seen outside world. Tell me about it. Let's start with you, Shivangi. I think patriotism एक आपके अंदर आ जाता है जब आपका एक फैमिली मेंबर हो डिफेंस में, और गिवन मतलब एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, और आई थिंक आर्मी लाइफ और डिफेंस लाइफ इज वेरी गुड, क्योंकि दादू कभी भी बताते थे तो हमेशा ही वाज वेरी हैप्पी कि वी गेट गुड मील्स, वी गेट गुड होम्स, वी गेट गुड ट्रीटमेंट, मतलब कहीं भी जाते हैं तो people show you respect. So I mean the life is really good. Thank you. ओके. So what about जो you? रियल पेट्रियोटिज्म होता है ना, वो अगर तुम किसी डिफेंस वाली फैमिली से पूछोगे ना, दे विल टेल यू अबाउट कि क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, ठीक है, कि क्या बुरे वक्त होते हैं या क्या अच्छे वक्त भी होते हैं। हर एक चीज़ के बुरे और अच्छे पहलू होते हैं। और बाकी जो अगर तुम, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेक पेट्रियोटिज्म कि हाँ ये नहीं हो रहा देश में, और आर्मी पे भी शक करते हैं, आर्मी के बारे में बुरा बोलते हैं कि हमें प्रूफ्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मतलब अगर उस फील्ड में ही नहीं आए कभी और ऊपर से तुम बोलते रहते हो बहुत सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी गलत है। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हर एक फैमिली में से हर एक बंदा तो नहीं, हर एक फैमिली में से कोई एक बंदा ज़रूर रिप्रेजेंट करे किसी भी पुलिस फोर्सेस को या आर्मी में, ताकि हमें मतलब आगे बेनिफिट भी हो। और एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि अब देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड आई एम सिटिंग हेयर डूइंग दिस पॉडकास्ट। आई हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट टिल येट इन माई लाइफ, ठीक है। तो अभी मैं अपने पापा की वजह से हूँ,
ठीक है, वैसी जो शिवांगी है वो ग्रैंडफादर की बात बता रही है, तो जनरेशन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत, पूरी सिनेरियो जनरेशन का चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। तो इट्स वेरी डीप थिंग। एंड और बाकी जैसे डिफेंस का कल्चर बहुत अच्छा होता है, यू मीट वेरी वास्ट पीपल जो जिनके वास्ट कल्चर्स होते हैं। सो अगर इस चीज़ का इन्फ्लुएंस किसी पे पड़े तो अच्छी बात है, ज्वाइन करो यार। डेफिनेटली हम तो सोच रहे थे कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें दूसरी साइड होना चाहिए था अगर हमारी फैमिली में से भी कोई होता तो। बट एनीवे, इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू बोथ विद अस। आपने इतनी इनसाइट्स दी, अपनी फैमिली के बारे में बताया, पर्सनल चीजें भी शेयर करी। वी आर सो थैंकफुल टू हैव यू हियर एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप दैट इंडियंस मेक अस प्राउड वेयर एवर दे गो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Jai Hind.